फिल्म का टाइटल ये गाने पे चाहिए जो इस सिचुएशन में आता है, which is a critical part of the film, which is the climax of the film. Let's write a romantic film. तो शुरू में मुझे लगा था कि I don't know whether this will really work out. तुमने लिरिक राइटर अभी तक कास्ट नहीं किया और तुमने पिक्चर लिख दी है because of the nature of the film. इनफैक्ट आधी पिक्चर हम जब शूट कर रहे थे तब तो टाइटल भी नहीं था. Well, the process was really interesting. मैं कुछ उब चुका था यार. I was after making 2 thrillers back to back. मैं देख रहा था कि not without any disrespect meant to anyone कि सब कोई बिल्डिंग्स फोड़ रहे थे या हेलीकॉप्टर्स उड़ रही थी एंड सब वही कर रहे थे एंड एक बहुत अच्छा ट्रेलर देखा था मैंने पर वो फिल्म देखने गया नहीं मैं खुद. तो मुझे लगा था अगर मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ व्हाट व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट एनीवन. और उस टाइम लिख रहा था समथिंग. सरप्राइजिंगली दैट टाइम उस वक्त कोई आइडिया नहीं था बट मैंने आई सॉ समथिंग कॉल्ड द रोमांटिक्स, एक डॉक्यूमेंट्री एंड great series and I understood कि जब how the romantic hero came in and someone did it and तब I spoke to my writer who was also working with me as my assistant associate director कि let's write a romantic film. उस वक्त कोई प्रोड्यूसर नहीं था, कुछ ये नहीं था. There was no plan to do anything. In fact, remind me to tell you this कि हमने ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया था कि फिल्म बनेगी नहीं बनेगी. पर बनते बनते ऐसे कभी मिथुन को I didn't plan कि ये क्या पहुँचेगा. So I met मिथुन for one song. I met this new boy called Rishabh for one thing क्योंकि मैं अक्सर अपना म्यूजिक राइटिंग के टाइम ही बनाना शुरू करता हूँ. बनते बनते बन गई. Then I met, I still remember meeting Sumanna Ghosh and Akshay Vidani, who actually is my producer, who told me that they are looking for a love story with Bhairav. तो शुरू में मुझे लगा था कि I don't know whether this will really work out. But I think when they read it, they said this is the kind of film they've been wanting to make. It's unusual कि मैंने उस टाइम जब लिखा था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि after seeing the romantics I finished writing it. But when I met them, I didn't know they would be looking for something like that. तो मुझे याद है जब मैं इरशाद भाई को जब आइडिया सुना रहा था एंड ही सेड तुमने बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ही सेड तुमने लिरिक राइटर अभी तक कास्ट नहीं किया और तुमने पिक्चर लिख दी है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फिल्म. एंड आई सेड सॉरी सर, ऐसा प्लान ही नहीं हुआ था. इट्स लाइक इट जस्ट द फिल्म जस्ट गॉट मेड द वे इट हैज टू. बट अ लॉट ऑफ फर्स्ट इन दिस फिल्म. उस टाइम इनफैक्ट आधी पिक्चर हम जब शूट कर रहे थे तब तो टाइटल भी नहीं था. और उस वक्त मैं तनिष्क को तो जानता हूँ पर इनसे मिला नहीं था. तो मुझे याद है मैं दुबई से मैंने फ़ोन किया था तनिष्क को और बोला था यार मुझे फिल्म का टाइटल ये गाने पे चाहिए जो इस सिचुएशन में आता है, which is a critical part of the film, which is the climax of the film. और ये जो भी गाने का नाम होगा ये इस पिक्चर का नाम होगा. And from a little bit of nudge from Sumanna, but Irshad bhai wrote this brilliant song and we got our title which was Sayyara. उस दिन जब मुझे क्या लगता है ना, जब एक पिक्चर का टाइटल आता है ना तो एक पिक्चर का डायरेक्शन आ जाता है, एक सुर सेट हो जाता है. So then this film wasn't about, it was about एक फोकस आ गया फिल्म में, एक डायरेक्शन आ गया फिल्म में जो आई गिव हिम सुमन्ना the divine light Sayyara. Yeah, give you the not give a position. It's not a film about the music world. It is not a film about just heartbreak. It is not a film about just falling in love. It's gone beyond that. It's about that everlasting love. Or that person that will always be in your life, even if you can be with that person or not. So I think I thank them a lot for giving that position because मैं सिर्फ एक कहानी बना रहा था, but the feeling was added by both these two people. Okay. And Irshad sir, जैसा कि उन्होंने कहा कि it goes beyond the scope of what we see in today's world about the love stories. Very young tale of love, very young saga of love. Plus it goes beyond the realm of what's already there. I want to understand from you the basics or the tenets of the poetry of Sayyara and the other songs as well in the film. If you could please break us down that.
See, basically, what I feel, yeah, that love is the only emotion which is immortal. आपको गुस्सा आता है, उतर जाता है. आपको किसी के साथ इरिटेशन होती है, खत्म हो जाती है. मोहब्बत जिसके साथ आपको होती है, वो मोहब्बत इतना बेसिक इमोशन है और इतना दायमी जिसे बोलते हैं, हमेशा रहने वाला इमोशन है कि आप उसको किसी भी लेवल पे डिनाई कर ही नहीं सकते. तो ये सैयारा ओवरऑल फिल्म में और इस गाने में खासकर टाइटल सॉन्ग में, लव इज नॉट अ वर्ड, इट्स लाइक अ रेनबो. यू नो, रेनबो इज अ वर्ड बट यू नो देयर आर कलर्स इन इट. क्या बात है सर. You know, so love is not a just word. There are colors, emotions. So those colors, those emotions, you know, Mohit sir is known for the, आशिकी 2 भी हमने इकट्ठे की, साथ में की थी. तो इनका एक है वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक फोटे, एक वो है उस रोमांटिक इमोशंस को पकड़ने का. तो वो जब हम लिख भी रहे थे, जब हम बात भी कर रहे थे, इस खासकर ये सैयारा टाइटल सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे, तो यही हो रहा था कि सी नाउ इन मूवी वी आर ऑलमोस्ट सीन द कैरेक्टर्स, सिचुएशंस, वी आर वाइंडिंग अप द इमोशन, वी आर वाइंडिंग अप आवर स्टोरी. सो उसको जितनी खूबसूरती से आप किसी चीज को, जैसे कहते हैं ना, अंत भला तो भला, वो वाली बात, यू नो. तो बहुत ये साथ में थे, तनिष्क साथ में था, एंड वी रियली ट्राइड आवर. एक्चुअली व्हाट ही सेड इज रियली नाइस. इट वाज अ मिक्सचर, सो मेनी कलर्स. जो तनिष्क का जो एक बैकड्रॉप है, व्हेन ही कम्स, इरशाद भाई, वी वर्कड बिफोर इन द पास्ट, बट he also comes from a different, say a different section of India. I represent a different kind of section. These boys come from a completely different background. I think it was actually a merge of colors. But then getting guitars done by someone in Assam, someone abroad, even making the song, that also at every stage, from the writing to the poetry to the singing. Yes. मुझे याद है एक छोटी सी चीज़ पे, I mean not छोटी, बहुत बड़ी चीज़ है. तो पहली बार जब डब हुआ आप, तो it's a very unusual word, but इरशाद भाई said ये word आपने गलत दब किया है, which is सैयारा in the, आपने ये गलत दब किया है. And Adisa also surprisingly picked up the same thing, and I said no sir, I understand that this is a rough dubbing. फिर पता लगा कि वो एक rough dubbing थी, इन्होंने किए ही नहीं थी dubbing वो. Okay. वो तनिष्क की मिस्चिफ थी जो वो करता है अक्सर, but how till the last thing I sent it to him, and Fahim and Arslan worked on it. और सर वो डबिंग में they just shifted not the emphasis on the word सैयारा but on the tu, and it's just suddenly changed the whole color of the song. Yeah. See, this is very minute and no, yeah. See, in creativity, what I feel, as these are involved, they must, say this also, okay. सर, जैसे आपने कहा ना कि छोटी चीज़ नहीं होती, हाँ, बट बहुत बड़ी चीज़. क्रिएटिविटी में कोई भी चीज़ छोटी होती ही नहीं है. ज़रा सा बाल बराबर आप एंगल चेंज कर लें किसी चीज़ का, वो पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है. अब तू से और सैयारा से हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ. तू से एक डायरेक्ट रिलेशन पे आई बात, सैयारा से कहीं एक मैटर पे, मटेरियल पे जा रही थी बात. तो दैट वाज द फिलॉसफी पे बात जा रही थी. ये पर्सनल हो गया. पर्सनल होना बहुत जरूरी है जब आप मोहब्बत की बात कर रहे हो, जब आप इमोशन की बात कर रहे हो. दैट इमोशन शुड बी वेरी पर्सनल, वेरी डायरेक्ट. सो ये एक जरा से चेंज से बड़ा फर्क पड़ा चीजों में. Okay. And my next question is for the two singers, both of you. I would like both of your inputs. जैसे कि इरशाद सर ने कहा कि क्रिएटिविटी में कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है. एवरी माइन्यूट थिंग कैन लीड अप टू समथिंग बिग इन द पीस, इन द बिगर पजल. व्हाइल यू आर रिकॉर्डिंग, यू ऑल्सो हैव योर ओन आइडियाज़ कि मैं इसे इस तरह से गाऊंगा, इस तरह से ये मेरी पिच रहेगी, ये इस तरह से मैं इसे इमोट करूँगा. व्हेन डू यू नो वेयर टू स्टॉप, बिकॉज क्रिएटिविटी इज़ एन एंडलेस प्रोसेस. हाउ डू यू पुट अ स्टॉप कि हाँ भाई ये इससे आगे बेस्ट अब नहीं हो पाएगा. एनीवन कैन टेक द लीड स्टार्ट. मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग रियली ऑनेस्ट कि
हमें एक्चुअली पता नहीं होता है प्रोसेस का। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं या गाना स्टार्ट करते हैं या कोई मेलोडी बनाना स्टार्ट करते हैं, वी डोंट हैव दैट थिंग इन आवर माइंड कि वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। अगर हम पहले ही वो उस डायरेक्शन में जाएंगे, मे बी विल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो दैट इज माय टेक ऑन इट। आई थिंक द प्रोसेस वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, और मैं बस मेरे जहन में थे मोहित सर, इरशाद सर, दादा, और उस चीज़ को एम्बॉडी करके मैं वोकल्स डब कर रहा था कि यू नो हाउ वुड दे हैव थॉट ऑफ इट, एंड नॉट ऑनेस्टली नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट इट, जस्ट गोइंग फॉर इट। इट इज़ अ प्योर इमोशन। और मुझे लगता है कि स्पॉन्टेनिटी में जब पहली एक दो दफ़ा आप कुछ क्रिएट करते हैं तो वही सबसे प्योर होता है, रॉनेस जो होती है। That's how our process actually works. Okay. And Mohit sir, I want to talk about the color palette of the film. Magenta and purple की family में mostly रहता है, अभी है. There's a certain mysticism which is related to the purple shade, and it also kind of trickles down into the overall orchestration of Sayyar, that from what I have heard, from what I have understood. इसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बता सके तो how did you marry people that? notice so much, I think. I don't think India has a picture. We have tried to do that. That's something which हम, as again Irshad bhai pointed out, creativity में कोई छोटी बात होती नहीं है. I don't like to over intellectualize it, because मुझे लगता है कि आदमी फिर आदमी सोच के पिक्चर नहीं देख सकता है या बना सकता है. I think दिल से बनानी पड़ती है. So while there are rules that you have to stay within, we try to achieve. Sometimes the best shots happen when the rules are broken. Yeah, absolutely. So there is a difference in life. Has colors, life has seasons. This is at a different stage in life. Well, that is at a different stage in life. I always, when I went through different stages of love, so I used to look at how the sunset looked different. Yeah. And I think that's how you decide. The nights are beautiful. The nights are unusual. Right. The lights sometimes feel sinful. Yeah. But it's the sunset and the sunrise that actually True. Yeah. decides the color palette of a film. Yeah, absolutely. So I don't. I'm glad you brought this up, but I wouldn't want to over talk about it, because I don't like to intellectualize filmmaking. I like to keep it simple and heartfelt. Okay. And Irshad sir, with regards to the poetry, भाषा किस तरह की, सैयार तो हमने सुना है अभी तक, बट और भी गाने आएंगे, वो क्या एक लैंग्वेज आपने फिक्स की है सारे गानों के लिए पूरे OST में? ये इसमें जितना मैंने काम किया है ना, गानों का एक मुहावरा होता है, और वो मुहावरा सेट करती है एज कि किस एज के कैरेक्टर्स हैं, क्या काम कर रहे हैं. अब यहाँ पे दोनों ही आर्टिस्ट हैं, राइट, और वो एक उस जोन में बात कर रहे हैं जिस जोन में जनरली आर्टिस्ट बात करते हैं. हालांकि ये बहुत बढ़िया बात कही मोहित सर ने कि बिना उसको ऐसा नहीं है, आप हर जगह दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती. ज़्यादातर हम जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं, राइट. तो आप अपनी बात को कहते हुए कैसे दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो. मुझे कितनी भाषा आती है ये बताना मेरा मकसद नहीं है जी. It should stay ना, ये होना चाहिए. क्या वो बात आपके दिल को छू रही है. बीते दिनों की किताबें जब एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, जो हमने फ्रेज इस्तेमाल भी किया यहाँ पे, जब आपका वक्त बीत जाता है तो एक एक दिन पे आप एक एक किताब लिख सकते हैं. इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है वो, यू नो. कोई भी वर्ड अननेसेसरीली या मीटर पूरा करने के लिए मुझे ना यूज़ करना आता है, ना मैं कर पाता हूँ कि ये कहीं तो खुले यार बात, कहीं तो बात हो कि अगर हम पिछले दिनों की बात कर रहे हैं तो आप अगर वाकई सोचने बैठे तो आप एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं उसके, और वो एक एक मोमेंट, एक एक घंटा, एक एक पल या जो भी होता है, वो उस पर इतने इमोशंस गए होते हैं, इतना टाइम गया होता है कि आपको आपका दिमाग वहाँ नहीं होता, आपका दिल ही होता है. तो ये मुहावरा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, सीधी लैंग्वेज, और समटाइम्स यू विल सी, एज आई सेड, के किताबें अगर वर्ड इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे, तो ऐसे नहीं कि ये ऐसे ही आ गया है. एक तो यूथफुलनेस के साथ बुक्स का बड़ा रिलेशन रहता है, यू नो, आपकी पढ़ाई के दिन और ये सारी चीज़ें. एंड दीज आर द आर्टिस्ट गाइज एंड द
वो बात कर रहे हैं बीते दिनों की, तो सिंपल लैंग्वेज, दिल को छूने वाली लैंग्वेज, दैट्स इट, कम्युनिकेशन। ये थोड़ा अंडरप्ले कर रहे हैं, आई थिंक गिवन इन द फिल्म दैट द गर्ल राइट्स पोएट्री, तो while we could do dialogue and could write the scene, I went to Irshad and I said, Irshad, you have to put the personality of this girl. Now बहुत tricky क्या है कि है 22 साल की लड़की, but he had to tell me, which is like with the song that what you see in the trailer and you see the voiceover is there in the film where she's writing it, and that's the what he added to the personality of the girl is something that I think I would not be able to capture with 3 dialogue scenes. Okay. Because it just talks when a person is, it just puts that mysticism, the character, and at the same time not. So I actually turned around and I said, Isha bhai, how do you in the end explain Sayyara in the simplest way? He said, would you like me to do it? I said, yes sir. Because and he's worded it so well, but at the same time not philosophized it. So what I really liked about his writing, even the poetry, it's almost, I wouldn't say additional dialogue, but like the poetry of the film has been written by Irshad Bhai. I thank him because that adds to the personality of the girl. कि बात बड़ी होनी चाहिए, शब्द नहीं, is what he's really taught me. Done in this film, and which is what the girl's character essentially gets established. So he's very underplaying it with the not just saying that he's playing it to the youth, but he's also spoken about, because we've been looking at the youth doesn't understand. It's completely wrong when you meet people like Fahim and Arsalan, the depth that they have. We over analyze it as things, it's they're young, they will not understand. It's lies. This whole thing that Gen Z doesn't get this, Gen Z doesn't like that, Gen Z is only on the phone. I think we are underrating Yeah, them of course. completely. Yeah. I think it's just how we've caricaturized children today, or the youth today.